Hello everyone. Today's topic of neuropsychology is neuropsychological assessment Halstead Return Battery. And we will know about neuropsychological assessment or NPA. Neuropsychological assessment is the systematic evaluation of the brain behavior relationship in an individual. न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट किसी भी इंडिविजुअल के ब्रेन और बिहेवियर के बीच में रिलेशनशिप का मापन होता है. The purpose of an neuropsychological assessment is to define the client's specific cognitive strength and weaknesses and to identify the relationships between the neurological findings and the client's medical and psychiatric condition. तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट का मेन पर्पस किसी भी क्लाइंट की विशेष संज्ञानात्मक स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानना होता है और उसकी विशेष कॉग्निटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसकी न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स और उसकी मेडिकल और साइकेट्रिक कंडीशन के बीच में रिलेशनशिप की पहचान करना होता है. Neuropsychological assessments are frequently completed to provide additional information about a variety of developmental disorder. Neuropsychological assessment generally किसी भी person के बारे में बहुत सारी developmental disorder की additional जानकारी भी हमें provide करवाते हैं. The most common referral questions concern medical disorders including genetic disorder, concussion and traumatic brain injuries, recovery from cancer, recovery from brain tumor and other neurological concerns such as epilepsy and movement disorder. तो मेनली जो रेफरल आते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए वो होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स किसी व्यक्ति को हो तो उसका न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है. कंकशन किसी व्यक्ति को हुआ हो, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी किसी व्यक्ति को हुई हो, तब भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए रेफर किया जाता है. कैंसर से रिकवरी हो रही हो किसी पर्सन की, ब्रेन ट्यूमर किसी पर्सन को हो गया हो तो उसके लिए भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है. और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं या मूवमेंट डिसऑर्डर है किसी व्यक्ति में तो उसके लिए भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है. Children who have acquired disorders such as those resulting from exposure to lead or other teratogenic substances are also frequently referred for an evaluation. बच्चे जिनमें की लीड की वजह से या फिर दूसरे विषैले सब्सटेंसेस की वजह से बच्चे में कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं या कोई और तरह की डिसऑर्डर बच्चे में हो गए हैं तो उनके लिए भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट बच्चों का किया जाता है. Disorders such as dyslexia, ADHD, autism spectrum disorder, and fetal alcohol syndrome disorder are common reasons for referral for assessment, particularly when typical interventions have not been successful. Generally, कुछ एक डिसऑर्डर यहाँ बताए गए हैं जैसे कि डिसलेक्सिया है जो कि पढ़ने से रिलेटेड होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ऑटिज्म डिसऑर्डर है, फीटल एल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जो कि मदर अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर एल्कोहलिक है तो उसकी वजह से बच्चे में हो जाता है. तो ये जो डिसऑर्डर है उनके लिए भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है. Psychiatric disorders such as obsessive compulsive disorder, anxiety and depression and behavioral dysregulation are referred for evaluation to more fully understand the child's difficulty and to provide recommendation for intervention in the home and at school. इसके अलावा बहुत सारे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जिसको ओसीडी के नाम से जाना जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है या फिर दूसरे तरह के बिहेवियरल डिसरेगुलेशन है, पर्सन का बिहेवियर एबनॉर्मल हो गया है किसी भी वजह से, तो उनके इवेल्युएशन के लिए या उनको और अच्छे से समझने के लिए भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है. And now we come to the Halstead Return neuropsychological
बैटरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HRNB के नाम से भी जाना जाता है. The Hurstad-Ritan Neuropsychological Test Battery and Allied Procedures is a comprehensive suite of neuropsychological tests used to assess the condition and functioning of the brain, including etiology, type, localization, and relationalization of brain injury. तो Hurstad-Ritan Neuropsychological Battery HRNB कई सारे न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट का एक कॉम्बिनेशन है, या कई सारे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट को मिलाकर एक बैटरी बनाई गई है, जो कि नॉर्मली ब्रेन की कंडीशंस और ब्रेन की फंक्शनिंग को असेस करने के लिए यूज की जाती है. और इसकी असेसमेंट में ब्रेन इंजरी का टाइप, की किस तरह की ब्रेन इंजरी हुई है, लोकलाइजेशन, ब्रेन के कौन से हिस्से में ब्रेन इंजरी हुई है, इन सब चीजों का पता Hurstad-Ritan न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी के द्वारा लगाया जाता है. The Hurstad-Ritan neuropsychological battery was first constructed by Ward C. Hurstad, who was chairman of the psychology department at the University of Chicago, together with his doctoral student Ralph Ritan, who later extended Hurstad test battery at the Indiana University Medical Center. तो Hurstad-Ritan न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी का कंस्ट्रक्शन वार्ड सी हर्स्टेड ने अपने PhD के स्टूडेंट राल्फ रिटान के साथ मिलकर किया था. हर्स्टेड उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, और इस न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी को बाद में उनके PhD के स्टूडेंट राल्फ रिटान ने बाद में और ज्यादा एक्सटेंड किया इंडियाना यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में. A major aim of administering the Hurstad-Ritan neuropsychological battery to patient was, if possible, to lateralize the lesion or either the left or right cerebral hemisphere by comparing the functioning on the both side of the body on a variety of tests such as suppression or sensory imperception test, the finger agnosia test, fingertip writing test, the finger tapping test, and the tactual performance test. तो जो मेजर एम Hurstad-Ritan न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी का होता है, वो होता है किसी भी पेशेंट में अगर कोई लीजन हो गया है तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना कि वो लीजन या घाव उस पर्सन के सेरिब्रल हेमिस्फीयर के लेफ्ट साइड में हुआ है या राइट साइड में हुआ है. तो लेफ्ट और राइट साइड को की फंक्शनिंग को कंपेयर करके ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी ब्रेन की फंक्शनिंग का पता लगाती है, और इस फंक्शनिंग का पता बहुत सारे टेस्ट का यूज करके लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कुछ टेस्ट के नाम दिए गए हैं जो कि Hurstad-Ritan न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी में यूज किए जाते हैं ब्रेन की फंक्शनिंग का पता लगाने के लिए. सप्रेशन और सेंसरी इम्परसेप्शन टेस्ट है, फिंगर एग्नोशिया टेस्ट है, फिंगर टिप राइटिंग टेस्ट है, टेक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे. One difficulty with the Hurstad-Ritan neuropsychological battery was its excessive administration time, up to 3 hours or more in some brain injured patient. तो एक जो डिफिकल्टी आती है इस न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो होती है कि ये बैटरी काफी ज्यादा एक टाइम कंज्यूमिंग बैटरी है. इसको कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेशन करने में लगभग 3 आवर या फिर इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है. अगर किसी पेशेंट में ब्रेन इंजरी ज्यादा हो गई है तो फिर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में 3 आवर्स से ज्यादा टाइम भी लग सकता है. इन पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द Hurstad category test was lengthy, so subsequent attempts were made to construct reliable and valid short form. तो पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो Hurstad कैटेगरी टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा समय लगता है. तो कई बार अगर पेशेंट को ब्रेन इंजरी कम लेवल की हुई है, माइल्ड ब्रेन इंजरी है, तो उस समय पर Hurstad कैटेगरी टेस्ट को छोड़कर बाकी जो दूसरे टेस्ट हैं उनको अप्लाई करके थोड़े समय में ही इस बैटरी को अप्लाई कर लिया जाता है.
This test was developed by Ward Halstead and his student Ralph Ritan in the early 1940. तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस टेस्ट का निर्माण हास्टिड और उनके स्टूडेंट राल्फ रिटान ने अर्ली 1940s में किया था. This test helped to determine the location and specific brain lesion. ये टेस्ट बैटरी मेनली ब्रेन में हुए लीजन्स की लोकेशन और उसकी फंक्शनिंग का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्सन विद सेरेब्रल रीजन, पर्सन के सेरेब्रल लीजन्स की ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी इस बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है. ब्रेन डैमेज इंडिविजुअल्स हैड अ वाइड रेंज ऑफ डेफिसिट एंड दैट अ सिंगल टेस्ट वुड नॉट बी एबल एडिक्वेटली टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द सिवियरिटी ऑफ देयर डेफिसिट. तो ब्रेन डैमेज्ड जो लोग होते हैं उनमें बहुत सारी अलग-अलग तरह की डेफिसिट दिखाई देते हैं, डिसफंक्शन दिखाई देते हैं. तो कोई एक सिंगल टेस्ट का यूज करके हम अच्छी तरह से ब्रेन में जो डिसफंक्शन हुए हैं उनका पता नहीं लगा सकते हैं या फिर ब्रेन डैमेज की सिवियरिटी का पता नहीं लगा सकते हैं. उसके लिए हमें कई सारे टेस्ट की जरूरत पड़ती है. Developed a series of 10 tests that ultimately formed the principal basis for his concept of biological intelligence. तो हास्टिड और रिटान ने 10 टेस्ट को मिलाकर एक बैटरी का निर्माण किया और इस टेस्ट को बनाने के पीछे प्रिंसिपल बेसिस बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को रखा गया. This battery is used for age 5 and older age group. इस बैटरी का इस्तेमाल 5 साल से लेकर 5 साल से स्टार्ट करके और बड़े लोगों पर किया जा सकता है. It consists of 10 tests designed to measure element of memory, abstract thought, language, sensory motor integration, imperceptions, and motor dexterity. Type, location of brain damage can be identified. तो इस बैटरी में 10 अलग-अलग तरह के टेस्ट का इस्तेमाल किया गया है जो कि नॉर्मली पेशेंट्स की मेमोरी यानी स्मृति को टेस्ट करने के लिए, उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को टेस्ट करने के लिए, भाषा को टेस्ट करने के लिए, सेंसरी मोटर एसोसिएशन को टेस्ट करने के लिए, उनकी परसेप्शन प्रत्यक्षण को टेस्ट करने के लिए और उनकी मोटर डेक्सटेरिटी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके अलावा ब्रेन में किस तरह का डैमेज हुआ है या ब्रेन की कौन से लोकेशन में डैमेज हुआ है इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए इस बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है. अब 10 टेस्ट कौन-कौन से हास्टिड रिटान न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी में है उनकी हम बात करते हैं. अफीजिया स्क्रीनिंग टेस्ट, हास्टिड कैटेगरी टेस्ट, टेक्टुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, शीशो रिदम टेस्ट, स्पीच साउंड परसेप्शन टेस्ट, finger oscillation test, trail making test, critical flicker frequency, time sense test, sensory perceptual test. तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इन 10 टेस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू.